Have you ever wondered, while cutting some fruits or vegetables, when you accidentally make a cut on your finger, what is that red, warm liquid oozing out from your finger? Well, we all know that is blood. But what exactly is blood? What is it made of? Well, let's know about it. Well, blood is a vital connective tissue made up of cellular components and plasma components. And these cellular components include our erythrocytes, which are red blood cells, leukocytes, which are white blood cells, and our platelets. But what about the plasma component? Well, it is just the plasma. Well, let's understand these components. Well, RBCs are biconcave disc-shaped cells which are rich in hemoglobin and help in transportation of oxygen. WBCs are the cells that help in the primary defense mechanism of the body that fights against the foreign pathogen in our body. As for the platelets, they are the cell fragments of the blood which helps in clotting during an injury. And for the plasma, it is just a cell-less and a colorless part of the blood. Well, now you know about blood. Blood is a vital part which helps in the transport of nutrients and oxygen. But do you know it is not same in every person? And this variation in blood form the basis of the concept of blood groups. Well, let's know how this phenomena was discovered. It all began with a man named Karl Steiner in the University of Vienna back in 1900s. He discovered that some blood transfusions were successful, while some were deadly. He observed that some blood transfusion patients were having a negative impact on their body, and he wondered, what was it? Why was it happening? He then started collecting different blood samples from different individuals, and then he separated the serum out of all that blood. Serum is basically plasma without fibrinogen and the other proteins which helps the blood to coagulate. He mixed the RBC of one person with the serum of another person and observed that sometimes they clumped together and sometimes they did not. This meant that the serum consisted of a specific substance which is known as Antibody! which reacts against the specific molecules present on the surface of the RBC which is known as Antigen! When noticing these patterns, he discovered three distinct types of blood groups, A, B and O, and AB was later discovered by his students. For his discovery of blood groups, he was awarded a Nobel Prize in Physiology or Medicine in the year 1930. So now let's understand these four types of blood groups, starting with blood group A. Blood group A consists antigen A in it with antibody anti-B in it. For blood group B, it has antigen B in it and antibody anti-A in it. As for blood group O, it has no antigens but both the antibodies. As for blood group AB, it has both the antigens and none of the antibodies. As you already know that these blood groups can be positive or negative. But do you know this concept came from a monkey? Amazing, right? But how did they do this? Let's know about it. It all started when Karl Steiner and Alexander Wiener extracted some blood from a rhesus monkey and mixed it with a rabbit serum. What did they observe? They observed that it showed a reaction of agglutination, which is the clumping of blood. This clumping was due to the presence of an anti-rhesus sera in the rabbit. When the sera was used against the human blood showed the same clumping as it was showing with the rhesus monkey. What does this signify? This signifies that the rhesus monkey and the human blood have something in common that was causing this clumping, and that was later known as the RH factor. Well, what was the point of this discovery? Well, it has a very great use on a daily basis. Let's say you had a very fatal accident or an injury, or even in pregnancies when there is a huge amount of loss of blood transfusion is done.
But where do we get this blood from? Can we just ask a person casually ki, hey, where can I get blood for myself? Well, no. We have to go to a specific place, and that is blood bank. A blood bank is basically a place where a huge amount of blood from different blood groups is stored and can be given to the person in requirement. Well, to know more about blood banks, let's visit a blood bank. This is the blood bank of District Hospital of South. This business. Blood groups. So here we are at the Delhi Hospital Blood Bank. So let me introduce you to our madam who will be telling you about all the questions. Ma'am, please आप अपना introduction दीजिए. मेरा नाम प्रियंका जैन है। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्लड बैंक में और पैथो में मैंने करीब 2014 से पोस्टेड हूँ और अभी कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रही हूँ एज अ लैब टेक्नीशियन। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं न्यू पोस्टेड हूँ। मैं अगस्त 2025 से DH में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। So let's start with our first question. मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इस ब्लड बैंक में जब से आई हैं, आप इस ब्लड बैंक को कैसे ऑपरेट करते हैं, इसे कैसे चलाते हैं? ऑपरेट करने के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि हम आपसे ही लेके आपका ही खून से किसी और की मदद करते हैं, तो खून के बदले खून की मदद होती है। अब जैसे कोई आता है उससे लेके हम स्टॉक बनाते हैं और जो हमारे पास रखा होता है वो हम पेशेंट को इशू करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोई किसी के पास नहीं होता है तो हम लोग डोनर भी अरेंज कराते हैं। मैम, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई डोनर अपना ब्लड देने आता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो उसका वेट होना चाहिए करीब 45 kg से ऊपर, हाँ, और एज होना चाहिए 18 से 62 साल, है ना, 62 ईयर। और उसको जो क्रॉनिक डिसीज़ है वो नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस वगैरह, सिफिलिस वगैरह और मलेरिया, टाइफाइड, या कोई लंबा ट्रीटमेंट नहीं चल रहा हो या कोई सर्जरी नहीं हुई हो 6 महीने में, और कोई उसमें कोई 6 महीने के अंदर कोई टैटू वगैरह तो नहीं बनवाया हो, और फिजिकली वो फिट हो और उसका HB, मेन तो HB है, हीमोग्लोबिन करीब 12.5 से ऊपर ही होना चाहिए, तभी हम उसको लेते हैं। अगर उसका 12.5 से कम हुआ तो हम उसको अनफिट मानते हैं, तो उसका नहीं लेते, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका 12.5 से ऊपर होना चाहिए। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर एक डोनर आपके यहाँ पे आता है तो उसके आने से लेके उसके शरीर से ब्लड निकालने तक का जो पूरा प्रोसेस है, क्या आप उसके बारे में हमें बता सकती हैं कि वो कैसे होता है?
लेके जाते हैं अप्रॉक्स? अप्रोक्स तो बोलना चाहिए, जैसे अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो अभी तो बहुत ही कम हो जाता है स्टॉक, लेकिन पर डे मान के चलो 13 से 14 ब्लड आता है लीटर्स में? हाँ, लीटर्स में नहीं, पर है हाँ। तो लीटर्स में तो देखा जाए तो फिर तो उसको इक्वल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम आप मान के चलो 30 और मैक्सिमम 40 भी हो जाता है। और फिर कभी कभी कैंप भी लगते रहते हैं तो कैंप का स्टॉक भी आता है, कभी कैंप में 20 हो गए ब्रीड तो कभी 200 हो गए, कभी 100, कभी 80, इस तरीके से होता रहता है। तो आप ये जो ब्लड कैंप्स है वो कितने ओकेजन में करते हैं, कब? वो तो डिमांड पे, जैसे किसी को आपको ही कैंप लगाना है तो आप मुझे डिमांड लेटर बनाएंगे, भेजेंगे, फिर हम लोग और डेट देंगे तो हम लोग अपनी टीम ले जाके पहुँच जाएंगे कहीं भी हो, सागर जिला में कहीं भी हो। हमारी बस है, हम लोग बस से चले जाते हैं, उसमें सारी फैसिलिटी रहती है। अगर आपके पास रूम है तो वहाँ करा लेते हैं, नहीं है रूम तो बस में 2 काउच वगैरह रहते हैं तो उसमें हो जाता है। ऐसे तो गिनती है मतलब हाँ होते हाँ। रहते लाइक मैम आपके यहाँ पे सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा आता है और कौन सा सबसे रेयर ब्लड ग्रुप आता है? सबसे पहले तो कॉमन O पॉजिटिव ही रहता है और रेयर में तो AB नेगेटिव। नेगेटिव ग्रुप तो रेयरली बहुत ही कम स्टॉक रहता है और वैसे भी नहीं, O नेगेटिव AB नेगेटिव, नेगेटिव सारे ग्रुप जो है 100 में से 20 ही लोगों के रहते हैं, लेकिन हमारे पास स्टॉक बना रहता है, बना के रखते हैं, उसकी कमी नहीं आती। करते हैं उसकी सेफ्टी और उसका कलेक्शन मेंटेनेंस वो आप कैसे करते हैं, किस तरीके से? जैसे मैंने डॉलर का लिया तो उसका तो सबसे पहले अगर उसका टेस्ट नेगेटिव है, सारे टेस्ट भोपाल से भी नेट टेस्टिंग जो होता है और अपने यहाँ तो फिर उसका सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट में FFP वगैरह बनाते हैं जो कि अपने यहाँ फ्रीज है, जो कि -डिग्री वाले 1 साल तक उसमें सेफ रहता है FFP वगैरह। और जो ब्लड है तो ब्लड का PRBC जो बचता है वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में करीब 4-5 फ्रिज है तो उसमें टेम्परेचर मेंटेन करके उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। और रही प्रिजर्वेटिव ऑलरेडी उसमें बैग्स में रहते ही है, जिसकी एक्सपायरी सेगम वगैरह CPDA वगैरह रहता है जिसकी 42 या 35 डेज होती है। ये आपके यहाँ पे ब्लड की शॉर्टेज हो गई या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि बहुत ब्लड चला गया या बहुत सारा ब्लड एकदम से चाहिए, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं? वैसे तो मोस्टली हम लोग स्टॉक जो होता है मिल नहीं करते, इमरजेंसी में तो 2 से 3 यूनिट सारे ग्रुप के बचा के ही रखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंटल केस आ गया, कोई डिलीवरी वाला आ गया तो उसको तो तुरंत ही देना पड़ेगा ना, उसके लिए वेट तो कराएंगे नहीं। और रहा जैसे फॉर एग्जांपल और कोई रहा कंडीशन, जैसे किसी की इमरजेंसी नहीं है इतनी, वो कुछ घंटे वेट कर सकता है तो उसके लिए हमारे पास डोनर्स रहते हैं, लिस्ट रहती है वॉलेंट्री डोनर की, उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है। मैम जैसे ब्लड वगैरह आते हैं, जैसे मेरा O पॉजिटिव है, इनका भी O पॉजिटिव है, बट ऐसा हमने सुना है कि कभी कभार O पॉजिटिव होके भी हमारा ब्लड ग्रुप कंपैटिबल नहीं हो पाता है, वो रिएक्ट कर जाता है पेशेंट की बॉडी में। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने पे आप लोग क्या करते हैं, या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है यहाँ पे किसी पेशेंट के साथ? बहुत होता है, कभी कभी शो होता है कि आपका O पॉजिटिव है लेकिन वो O जनरली नहीं हो सकता है आपका बॉम्बे ग्रुप हो। और दूसरी बात, अगर आपका बॉम्बे ग्रुप नहीं भी है और O पॉजिटिव है तो अगर आपका क्रॉस मैच तो जो करते हैं मेजर क्रॉस मैच माइनर क्रॉस मैच, उसका रीज़न कई हो सकता है आपने कोई ड्रग्स लिया हो सकता है आपको कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो, और हाँ हो सकता है कोई आपकी अदर एंटीबॉडी ने मतलब क्या बोलना चाहिए, नहीं अदर एंटीबॉडी ने अटैक कर लिया हो तो उस वजह से रहता है। आपकी अब तक की जर्नी 2014 से लेकर 2025 कोई ऐसा केस आया है जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एंड उसने काफ़ी एक इम्पैक्ट छोड़ा हो आपके इस करियर में? केस तो इतने सारे आए हैं कि वो मैं बता ही नहीं सकती, लेकिन 1-2 केस ऐसे मैं बता सकती हूँ कि जैसे किसी का अपने यहाँ जनरली ग्रुप चलता है A, B, O या AB, लेकिन कभी कभी किसी का A होने के बाद भी A2 भी रहता है, उसका A नहीं है, क्लम्पिंग दे रहा है लेकिन उसका दूसरा ग्रुप है,
तो उसके लिए हमारे पास ग्रुपिंग सिरा वगैरह रहते तो उससे कंफर्म करते। अब आप A to B ये वगैरह जो ग्रुप है वो रेयरली रहते, शायद है कि वर्ल्ड में किसी के हो, मतलब रहते हैं मुश्किल से 1 या 2%। तो वो हम लोग फिर रेफ़र करते हैं पेशेंट को, पहले तो बोल देते हैं कि आप जाइए, ये वाला ग्रुप नहीं मिलेगा। अब वो भी परेशान होते हैं, तो फिर उसकी तो व्यवस्था फिर वही स्टाफ वाले देखते हैं, मतलब जहाँ पेशेंट एडमिट है फिर वो देखते हैं, उसका साफ साफ लिखते हैं ग्रुप इज़ नॉट कन्फर्म। तो एक तो केस ये हो गया कि उसका ग्रुप ही कंफर्म नहीं होता है कि उसका A है या A to B है। और दूसरा केस कभी कभी ये होता है कि क्रॉस मैच नहीं होती है, तो कभी कभी अगर अपन ब्लड इशू कर दो तो पेशेंट में रिएक्शन बहुत देखने को मिलते हैं। अब वो रिएक्शन ऐसे देखते तो डर लगता है कि भैया ऐसा क्या हुआ। कभी कभी मतलब जानलेवा तो नहीं हुआ, लेकिन रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग डर जाते हैं कि एक्चुअल हुआ क्या था, क्योंकि ना तो वहाँ मतलब जो ट्रीटमेंट जहाँ चल रहा है वो भी नहीं बता पाते हम लोग भी। हमारे यहाँ से तो 100% रहता है, लेकिन सामने वाले का नहीं रहता है, तो फिर हम लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। मैं तो स्पेशली आप लोगों से बोलूँगी कि जो मेरे दिल को छूते हैं और हमेशा छूते हैं, और मैं इस पर अभी चर्चा करूँगी तो हो सकता है रोना आ जाए। हमारे यहाँ थैलीसीमिया के केस बहुत बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि मैं खुद एक मदर हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मतलब 6-6 महीने के बच्चे जो आते हैं जिनके पास ब्लड नहीं होता है, मतलब वो जो ऊपर से ब्लड चढ़ के ही उनका जीवन यापन होता है, ये केस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि पहले हमारे पास केस थे लगभग 100, आज हो गए हैं 10,000 से ऊपर। ये क्यों हो रहे हैं, मैं तो स्पेशली बोलूँगी इस वीडियो के ज़रिए, अगर हो सकता है ये वीडियो कहीं पहुँच जाए तो, कि सबसे पहले आप शादी के पहले कुंडली मिलान के चक्कर में ना रहे। सबसे पहले अपना बॉडी चेकअप कराएं, मेल फीमेल दोनों का। अगर आपकी बॉडी में कोई डाउन सिंड्रोम है तो अगर आपको उसी से शादी करनी है तो फिर बच्चे मत करो। और अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो आप तो पहले सारे टेस्ट करा के ही बच्चे का प्लान करो, क्योंकि आपका तो चल जाएगा लेकिन बच्चे वो हमेशा रोते रहते हैं। आप सोचो हर 10 दिन में उनको ब्लड चढ़ता है, क्या तकलीफ होती है उन बच्चों को। माँ कभी कभी हमारे पास ऐसा हो जाता है कि स्टॉक में नहीं रहता, तो हम लोग वॉलेंट्री डोनर को फ़ोन करके बुलवाते हैं कि नहीं इनकी मदद करो। और बच्चे वो निडल लगा के आते हैं रोते हुए कि मम्मा आप मत करो मत करो। उसको फीवर तेज रह रहा, बच्चा खा पी नहीं रहा, उसको ब्लड चढ़ना है। और माँ का मैं सोचती हूँ कि यार कितनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको पता है कि उसके बच्चे की आयु ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो उसको लेके चल रही है। मैं सोचती हूँ अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं नहीं जी पाती, मैं तो वो बच्चा तो जी जाता, मैं शायद चली जाती। मैं तो ये कह रही हूँ कि थैलीसीमिया के केस को कम करने के लिए या सिकल सेल एनीमिया के केस को कम करने के लिए आप सबसे पहले कुंडली मिलान के चक्कर में ना रहें, मेल फीमेल का ब्लड टेस्ट कराएं। और कोई डाउन सिंड्रोम होता है तो आप पहली बार तो शादी ना करें, और शादी करना है तो बच्चे ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। हमारे यहाँ थैलीसीमिया के पर डे करीब 30 से 40 केस आते हैं। और सोचो वो बच्चों की आयु कितनी रहती है, जब तक आपका ब्लड चढ़ेगा जिंदा है, नहीं चढ़ेगा तो ऐसे कई केस हुए हैं, कई पेशेंट जिनकी डेथ हो चुकी, जो हम लोग एक उर्वशी काव्या हम लोग ब्लड इशू करके रखे, बोले आया नहीं 2 दिन बाद फ़ोन किए, बोले उसकी डेथ हो गई। तो हम लोग को तो ऐसी तकलीफ़ होती है कि मैं तो सबके सामने नहीं रो पाती, मैं अकेले में आके रो लेती, क्योंकि मैं इस चीज़ को पहले भी फेस करती थी, लेकिन जब से मैं खुद माँ बनी हूँ तब से ये चीज़ मुझे इतनी चुभती है कि मैं थैलीसीमिया वालों को तो अगर नहीं भी होता है तो व्यवस्था करके देती। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने इशू करके भेजा था, हाँ। 5 मिनट और रिटर्न आ गया, पता चला उसकी डेथ हो गई। हाँ, तो ये ऐसा लग रहा था कि हम लोग काम जरूर करते हैं, लेकिन हम लोग का हार्ट बहुत कमज़ोर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे, क्योंकि बच्चों को जहाँ देखते हैं ना तो तकलीफ बहुत होती है। आप चाहे इस वीडियो को कट कर देना, तो स्पेशली आप लोग इस पे काम करना। मैं जब स्टूडेंट थी तो मैं तो सोचती थी कि मुझे इस पे काम करना है, और मैंने कोशिश भी की। मेरे यहाँ काउंसलर जो है प्रीति जैन, उनसे भी मैंने बोला कि दीदी आप हम इस पे कुछ करते हैं, क्योंकि केस मतलब ऐसे बढ़ते जा रहे कि आज डिलीवरी हुई 3 महीने बाद बच्चे को ब्लड लगने लगा,
मैंने कहा क्यों, अभी तो नॉर्मल था। हाँ दीदी, अब उसका फीवर ही नहीं जा रहा था। फिर डायग्नोस हुआ कि उसको मेजर थैलेसीमिया है, किसी को माइनर थैलेसीमिया। तो ऐसा लगता है यार, पहले उन्हें खुशियाँ मनाई बच्चे होने की, अब फिर वो 2 महीने बाद बस हर महीने आते, कभी महीने में 3 दिन आ जाते, तो कभी 5 दिन आ जाते। तो हर बार और कई किलोमीटर दूर से आते सिर्फ ब्लड चढ़वाने। तो आप लोग स्पेशली इस पे काम करना और एक्शन लेना, और मेरी मतलब गुजारिश है कि आप लोग थैलेसीमिया पे काम करके इस चीज़ को कम करने की कोशिश करें। केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी परसेंट कम होना चाहिए, परसेंट बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। अगर हमारे एक बच्चे को थैलेसीमिया है तो हमें दूसरे बच्चे पे सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते वो दूसरा भी कर लेते। एक देख के तो तीनों बच्चे थैलेसीमिया वाले, अब सोचो वो लेके आते हैं, तो हम लोग तो सोचते कि यार देखो खुद तो जी रहे हैं, वो भी तड़प तड़प के जी रहे हैं। encourage करेंगे कि वो अपना ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आजकल का जो यूथ है हाँ। वो यूजुअली हमें पता है नशे में धुत है या स्मोकिंग वगैरह कर रहा है। बट अगर उसी यूथ को आपको ये बताना हो कि आप ब्लड डोनेट कीजिए दूसरों की हेल्प करने के लिए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं तो सबसे पहले मतलब मैं काउंसलिंग जब करती हूँ तो जो देने के लिए नहीं आते वो दे देते हैं, मैं उनको इतना ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। पहली बात तो जब हम ब्लड देते हैं तो देने से मतलब मैं जब प्रमोट करती हूँ तो उसको बोलती हूँ कि सबसे पहले आपका ब्लड जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक से आप बच जाओगे। और आपके अंदर वैसे भी हमारी आरबीसी की लाइफ स्पैन टाइम 120 डेज होता है, तो मैं उसको बोलती हूँ 120 दिन बाद तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा ब्लड, तो तुम डोनेट कर दो। जब फेंकने से तो अच्छा है किसी को दान दे दो। मैंने अभी जस्ट एक को बोला था, किसी पेशेंट को सांप ने काट दिया था, वो डोनर तैयार नहीं था, मैंने इशू करके भी रखा। तो मैंने यही बोला, आप, वो कहता है मैं मजदूर हूँ, मैं तो स्वस्थ नहीं हूँ। मैंने कहा मजदूरी तुम भी कर रहे, मजदूरी मैं भी कर रही हूँ, बस फर्क इतना है तुम खेत में कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, काम तो सबका एक जैसा है। और उसको प्रमोट करने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ कि भैया कुछ भी नहीं होगा, आप बल्कि और स्वस्थ हो जाएंगे और अच्छा फील करेंगे। जब हमारे शरीर से पुराना ब्लड चला जाता है तो जो फ्रेश ब्लड बनता है तो उससे हमारी स्टेमिना, इम्यूनिटी डबल होती है। आप लोग भी कभी रक्तदान करके देखना, उस टाइम जैसे दोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर से सब कुछ निकल गया है, अब नया खून बन रहा है, तो हमारी जो एनर्जी है ना डबल हो जाती है। तो यही सब बातें करके मैं लोगों को प्रमोट करती हूँ। मोस्टली 90% तो एग्री हो जाते हैं, जो 10% होते कि वो ठान के आते नहीं देना तो नहीं देना, तो उनको कुछ नहीं कर सकते।